is also recognized globally as the center of excellence in Southeast Asia. Kisan Mitra Friend of Farmer is an initiative by the Principal Scientific Advisor Office in partnership with CCS Niam Jaipur. The objective of this initiative is to bring technologies to farmer and reverse migrant who have moved rural due to the impact of COVID-19. Under this initiative, more than 1,000 technologies have been identified, which are supported by ICR institutions, NABARD, Ministry of Rural Development, ISRO, and Gates Foundation. On the supply side of the technology, these are innovators, entrepreneurs, researchers in academic and research institutions talking about their technology, and the webinar partnership bring on demand side who are typically agribusiness enthusiasts, government functionaries, agribusiness companies, and other holders who are needed agri technologies. Moving further, I would like to introduce our today's speaker team. Ms. Richa Gadia, CEO and founder We Grow FCA with 20 years of experience in data modeling for government sector, and SME ex-consultant at PwC, independent consultant to Deloitte, DFID, Rajasthan Youth Board, mentor at GCEC College, and Mr. Paresh Gupta, co-founder, 6-time tax and mentor at startup or Singapore, Verizon, eSpark, Singapore, and many other alumnus of SRCC, CA, and MBA from LSBF. Over 13 years of corporate experience across Asia, Middle East, Europe, and USA. And Mr. Tushar Saini, he is a partner, We Grow, Deloitte, alumnus process and operations advisory, city lead, and SRCC graduate mentor at GCEC College. Now, I would like to invite Ms. Richa Gadia to take session application of blockchain or QR code in agriculture produce. Over to Ms. Richa Gadia, ma'am, please. Hello. Yeah. Good morning, everyone. Thank you, Gajan sir, for such a warm welcome and a nice introduction. Thank you. All of us over here, as you know, are professionals. And before we start, I would like to share something about us, how this journey started. So this started around 4-5 years back. I was working in, like all of us was working with big companies. And the news, like most of the newspapers were filled with news of adulteration in food. कभी अदरक में जहर की कहानी थी, तो कभी मूली नाले के पानी में उबरी हैं. Then there was कार्बाइड में हमारे मैंगोज को राइपन किया जाता है. And there were so many of such stories doing the rounds. The situation was so bad कि it was said कि जो slow poisoning kings को दिया जाता था, arsenic and lead content in NCR was much higher than that. So the food coming to our tables was filled with poison. And to bring the change, to be the change, we started. We took a farm in NCR. We started the growing our produce, collaborated, talked to our neighborhood, and then like it was very well appreciated. We got covered by Dainik Jagran, we got covered by Z Media. Then we realized that just farm to plate model is not sufficient. क्योंकि उसमें एक restriction है, scalability नहीं है. So to change, to move further, we thought of putting QR codes,
somehow find the source of packaged products. So we started with QR code technology, but then it was again not, it also has some drawbacks. So tampering उसमें कहीं भी हो सकती है. So now we are working on blockchain based technology, which is absolutely tamper proof. So once entries are done, then it gets saved in the system. I'll hand it over to Paresh to explain it further. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड इतनी सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए, हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम तीनों प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस बैकग्राउंड के लोग हैं और एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं. तो बहुत ही अलग और यूनिक एक्सपीरियंस है हमारे लिए. शुरुआत करी हम लोग ने एज रिचा सेड दैट हम लोगों ने शुरू किया फार्मर से, बस केवल आइडेंटिफाई करके बताते थे कि देखिए यहाँ से आ रहा है तो कम से कम आपको पता है कि आपके घर की आने वाली मूली, टमाटर, गाजर या हनी, स्पाइसेस, जो भी कैंडीज, जो कुछ भी है कहाँ से आ रहा है. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप मुझे बताएं कि आपके घर पे अगर मिर्ची आती है तो कहाँ से आ रही है. केवल उसमें पैकेट पे लिखा होता है कि ये इधर पैकेज हुई या इधर पैक हुई, बट आपको कोई अंदाजा नहीं कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है. इतना अडल्ट्रेशन था. अभी आप लेटेस्ट न्यूज पढ़ेंगे कि हनी के 77% सैंपल्स पाए गए और बड़े बड़े ब्रांड्स, मतलब सारे बड़े ब्रांड्स फेल हो गए उस टेस्ट के अंदर जो हनी की टेस्टिंग करते थे. एंड दैट इज सो सरप्राइजिंग कि हम इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को खरीद रहे हैं. मैगी के ऊपर इतना बड़ा केस हुआ और ये कॉन्स्टेंटली हमारे बच्चों को गलत खाना खिला रहे थे. तो द होल आइडिया हुआ कि इसको सॉल्व करना है किसी तरह से. एंड हमने वहां से शुरुआत की, फार्म से लेकर के फिर क्यूआर कोड डाले. आजकल क्यूआर कोड आपको काफी सारे पैकेट्स में दिखेगा और अभी काफी सारे प्रोडक्ट्स और एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर क्यूआर कोड लगाने लगी कंपनीज. बट जो क्यूआर कोड भी टैंपर प्रूफ है, उसमें कुछ क्यूआर कोड में कुछ भी नहीं है. मतलब क्यूआर कोड इज एज सिंपल एज दिस कि मैंने लेबल पे चिपकाने की जगह क्यूआर कोड चिपका के आपको बोल दिया कि ये इन्फॉर्मेशन है. तो हाउ कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप? सो हम लोगों ने सोचा लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप एंड इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन. तो आज का जो पूरा प्रेजेंटेशन है, हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए बात करना चाहते हैं. और सारी बड़ी कंपनीज आज के डेट में वर्ल्ड की इसकी तरफ मूव कर रही हैं और इंडिया में ये आने लग गया है. काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें इंडिया के अंदर हो रही हैं. सो आई थिंक हमें जितनी जल्दी हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और जितनी जल्दी इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, उतना ज्यादा सारे किसानों को, सारे फूड प्रोसेसर्स को फायदा होने वाला है. और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है IoT. सो आई एम गोना टॉक अबाउट ब्लॉकचेन एंड IoT टुडे. ये है क्या, उसमें होता क्या है, कैसे आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ब्लॉकचेन या IoT इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. और ये वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग टैंपर प्रूफ टेक्नोलॉजी है. आज की डेट में ब्लॉकचेन से बेटर सिक्योर मेथड कुछ नहीं है. सो अगर आप कहीं भी जाएंगे तो IoT और ब्लॉकचेन, IoT का मतलब है स्मार्ट प्रोडक्ट्स. जैसे आज आप स्मार्टफोन देखते हैं, स्मार्ट टीवी देखते हैं, स्मार्ट एयर कंडीशनर्स हैं, स्मार्ट हीटर्स हैं, सारे स्मार्ट प्रोडक्ट्स, हमारी स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं. आप ये सोचिए कि अगर मेरे पास एक स्मार्ट वॉच है और मैंने वो स्मार्ट वॉच लगा रखी है, मेरे फोन से कनेक्टेड है, तो मेरी पल्स रेट, मेरी स्लीपिंग हैबिट्स, मेरे स्टेप्स ऑटोमेटिकली मेरे फोन में रिकॉर्ड होके डेटा आ जाता है. और वो डेटा को मैं बदल नहीं सकता. तो मैंने अगर 6000 स्टेप्स चले तो मैंने 6000 स्टेप्स ही चले, मैं खुद भी उन स्टेप्स को नहीं बदल सकता. तो अगर मैं IoT प्लस ब्लॉकचेन को कंबाइन कर दूं तो देन दिस इज कंप्लीटली टैंपर प्रूफ इंफॉर्मेशन और उसके बाद कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता. और ये मोटा मोटा आइडिया है. बिफोर आई स्टार्ट कि ब्लॉकचेन होता क्या है और IoT में होता क्या है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि दुनिया में अभी हो क्या रहा है. और इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं. अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर भी काफी सारी चीजें हो रही हैं. सबसे बड़ा जो पायनियर है वो है IBM. और IBM जितनी बड़ी कंपनी है स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज IBM फूड ट्रस्ट. और IBM फूड ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, जहां पर वो लोग इंश्योर करते हैं कि जो फूड है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, स्टैंडर्डाइजेशन आए, एफिशिएंसी आए. और IBM जैसी कंपनी ने एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बनाया है जिसके अंदर वो लोग कॉफी जैसे प्रोडक्ट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, टी है, उन सबको इनफैक्ट सपोर्ट कर रहे हैं. तो और इंडिया के अंदर रिसेंटली जो कॉफी बोर्ड है, कॉफी ट्रस्ट है इंडिया का, उन्होंने IBM के साथ पार्टनर करा है अभी टू इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन इनटू कॉफी. सो अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि कॉफी के अंदर ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस होता जाएगा. IBM इज वर्किंग ऑन दिस आइडिया. नेस्ले जितना भी फूड है, और आप देखिए फूड जो मिल्क है
milk is the most contaminated and easily adulterated item again. तो नेस्ले ने अभी अगेन मिल्क ट्रैकिंग और पाम ऑयल ट्रैकिंग शुरू करी है थ्रू ब्लॉकचेन. एंड अगेन दे आर डूइंग अ पायलट प्रोजेक्ट जिसके अंदर वो न्यूजीलैंड के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के अंदर ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करके चीजों को इंट्रोड्यूस करके इम्प्रोवाइज कर रहे हैं. सो दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड बी प्रोजेक्ट ये सबसे इंटरेस्टिंग है और आयरॉनिकली आई एम प्राउड टू से दैट कि हमारी टीम ने वर्ल्ड बी प्रोजेक्ट के साथ में पार्टनरशिप कर ली है एंड वी हैव ऑलरेडी स्पोकन टू देम एंड दे हैव अग्रीड टू बी पार्टनर्स विद अस. और हमारी उनके जो उनकी हेड है साबिया उनसे कॉन्वर्सेशन हुई एंड वी स्पोक टू हर एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड कि हम इंडिया के अंदर सेम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो यूके के अंदर और बाकी सब कंट्रीज में काम कर रहे हैं. दिस इज इन पार्टनरशिप विद ओरेकल. तो ओरेकल अगेन इज वर्किंग ऑन वर्ल्ड बी प्रोजेक्ट. और बी एक ऐसा प्रोडक्ट है सर जो बहुत ज्यादा इजी टू टेम्पर है. और आप हैरान होंगे कि मैं हैरान होता, मतलब आप किसी भी शेल्फ पे जाएंगे ग्रोसरी स्टोर पे, आप हनी के डब्बे देखिए और सारे डब्बे एक जैसे दिखते हैं. और सारे बड़े ब्रांड्स की सारा हनी इतने सालों से एक जैसे कलर का और एक जैसे टेस्ट का होता है कि आप कभी असलियत में हनी निकाल के देखिए, कभी छत्ते से निकाल के देखिए, कभी हनी के रियल बॉक्सेस से आप हनी निकालिए, आपको रियलाइजेशन होगा कि हर बैच का, हर प्रोड्यूस का, हर हनी के आउटपुट का कलर, फ्लेवर, विस्कोसिटी अलग होती है. और ये हमें पता ही नहीं चलता. हमें जो खिलाया जा रहा है वो इतना ज्यादा डेंजरस है कि हम उसके ऊपर और अंधों के जैसे विश्वास करके चीजें कर रहे हैं. तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर काम करना है. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. वॉलमार्ट अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज एंड बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर्स जिसने अभी फ्लिपकार्ट को अक्वायर किया, दे आर वर्किंग ऑन इन चाइना इन चाइनीज प्रोडक्ट्स टू बिल्ड ब्लॉकचेन. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. और मतलब मेरा ये मानना है कि मैं ये मानता हूं कि अब आगे आने वाले वर्ल्ड के अंदर अगर आपको सस्टेन करना है, अगर आपको सर्वाइव करना है एज अ फार्मर, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस पर्सन, आप टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं कर सकते. सो हमको टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी और हमारे सारे फार्मर्स को, सारे जो भी लोग इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं अभी या बाद में, शुड डेफिनेटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजीज एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होता क्या है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा ये डेफिनेशन है कि इट्स अ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एंड जिसके अंदर क्रिप्टोग्राफिकली चीजों को स्टोर किया जाता है. बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपलर मैनर कि होता क्या है. और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है आज की डेट में, सपोज करते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफिस है या एक कंपनी है या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें कैसे डेटा स्टोर हो रहा होगा. तो स्टोर ऐसे होगा कि मल्टीपल यूजर्स होंगे और जैसे मैं हूं, ऋचा है, तुषार है, और बाकी सब लोग हैं, वो सब बैठे हुए हैं और हम सबके पास अपने अपने कंप्यूटर्स हैं और एक सेंट्रल सर्वर होगा और सारी जो इंफॉर्मेशन होगी वो करंटली उस सर्वर पे स्टोर्ड होगी. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सारी इंफॉर्मेशन एक सर्वर पे स्टोर्ड है, मैं एक हैकर हूं, तो मैं इजीली इस सर्वर में हैक कर सकता हूं, डेटा को बदल सकता हूं और सबके लिए वो डेटा बदला जा सकता है. सो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि हम कितने ज्यादा प्रोन है. आप ये देखिए कि जहां पे भी कॉमन सर्वर्स पे डेटा स्टोर्ड है, हाँ, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक के ट्विटर अकाउंट्स टैंपर हो जाते हैं. तो हमारी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी जीरो है. तो जो कुछ हमें बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसका कोई गारंटी नहीं है. एंड दैट इज व्हाट इज द करंट टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म कि हम कुछ भी कर लें, अगर वो कॉमन सर्वर पर है तो इट इज वेरी इजी फॉर समबडी टू कॉपी, ब्रेक इनटू द सिस्टम एंड चीट. अब अगर हम ब्लॉकचेन पे आते हैं तो ब्लॉकचेन का एक बहुत इंटरेस्टिंग फंडा है. इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज एक पीस ऑफ पेपर है और मैंने जैसे अब सारी कागज पे मैंने खूब सारी इंफॉर्मेशन लिख दी कि मैं आपको इतना देता हूं, इतना लेता हूं, ये है वो है, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को डालनी है मैंने उस कागज पे लिख दिया और उस कागज को छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिया. तो मैंने उसको 100 अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, राइट. और ये सारे ब्लॉक्स कहलाएंगे. तो अब ये सारे 100 टुकड़े अलग 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 जगह पे हैं और ये 100 अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. तो मैंने बोल दिया ये टुकड़ा इसके पास, ये टुकड़ा इसके पास, ये टुकड़ा उसके पास, उसकी मल्टीपल कॉपीज. तो मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीपल लोगों की तरफ पहुंचा दिया. तो अब ये समझिए कि वो कॉमन सर्वर पर है ही नहीं. अब वो 100 लोगों के पास टुकड़े 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 के पीसेस में है. अब वो इंडिविजुअल पीस जो एक एक्स इंसान के पास है वो उसे पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि वो इतना छोटा है कि वो समझ में ही नहीं आएगा.
और कोई भी इंसान उसको इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकता। उसको पढ़ने के लिए अब आपको एक ऐसी मशीन चाहिए, कॉमन मशीन चाहिए, जिसमें आप ये सारे पीसेस डालेंगे, उसको एनक्रिप्ट करेंगे। तो एक प्रोसेस होता है डिक्रिप्शन एंड एनक्रिप्शन का, जिसके अंदर आप उसको एक ऐसी क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज में डाल देते हैं जो कि नॉन अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। तो वो पढ़ने लायक ही नहीं बचेगा पेपर। अब वो 100 लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको आप एक ब्लॉकचेन के सर्वर में डालिए, उसके थ्रू अगर उसमें डाला, और दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। तो ये एक अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। तो उसको डेटा माइन करके और आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, एंड इट इज दैट सिक्योर। इट इज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे इंटरनेट है, आज इंटरनेट की जो स्पेस है, गूगल पे जो डेटा हम देखते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, वो गूगल के सर्वर पे है ही नहीं। दैट इज स्टोर्ड इन आपके, मेरे, हम सबके सर्वर्स पे स्टोर्ड है। पूरे वर्ल्ड के सारे लैपटॉप्स एंड सारे कंप्यूटर्स मिल करके वो डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ब्लॉकचेन इज एग्जैक्टली डूइंग दिस, कि सारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमने इंफॉर्मेशन को उसमें डाल दिया। उसके अंदर एक और टेक्नोलॉजी होती है क्रिप्टोग्राफी, जिसके अंदर हम जो भी, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में नहीं लिखा है, वो क्रिप्टोग्राफिकली एनक्रिप्ट करा जाता है। तो इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है कि कोई उसे पढ़ नहीं सकता है, अनलेस देयर इज अ स्पेशल मशीन टू अंडरस्टैंड दिस, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ ब्लॉकचेन। तो इट्स अ ब्लॉक बाय ब्लॉक, एक एक ब्लॉक आप जोड़ते जाइए, और जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन आती जाएगी वो ब्लॉक बनता जाएगा, फिर ब्लॉक बनता जाएगा, एंड इट कीप्स ऑन एडिंग, एंड इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट सेफ मेथड ऑफ डेटा सिक्योरिटी। अब ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन का मतलब साउंड्स इंटरेस्टिंग, वेरी कॉम्प्लेक्स, इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी जैसी लगती है, पता नहीं क्या है। और अगर मैं एग्रीकल्चर फार्मर हूं, या हम लोग फाइनेंस के लोग थे, हमने कहा यार ब्लॉकचेन का हमारे से क्या लेना देना। सो आप हैरान होंगे, बट आज की डेट में ब्लॉकचेन इज बीइंग यूज्ड इन एवरीथिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग जो इसके एप्लीकेशंस है, वो फूड में, एग्रीकल्चर में, सप्लाई चेन के अंदर, म्यूजिक इंडस्ट्री में, पायरेसी रोकने के लिए, फिल्म की पायरेसी, म्यूजिक की पायरेसी, इन सबको रोकने के लिए यूज किया जा रहा है। और लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन कि कैसे रोका जा सकता है। तो अब आप सोचिए कि अगर आपके घर में एक मिर्ची का पैकेट आता है, और आपको बोला जाता है कि ये मिर्ची का पैकेट इधर पैकेज हुआ, इधर सप्लाई हुआ, और इधर इससे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आपको कोई गारंटी नहीं और कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो कंपनी आपको झूठ बोल रही है कि सच, राइट? आप, इनफैक्ट मैं आपको सही बता सकता हूं कि जितने भी हनी के पैकेट पकड़े गए, और 77% हनी जो अभी रिसेंटली पकड़ा गया, जिसमें बोला गया कि वो अडल्ट्रेटेड था और उसके अंदर हनी नहीं था, प्योर हनी, उन सब पैकेट्स के ऊपर क्लियर लिखा था 100% प्योर हनी, एंड इट वाज मेंशन्ड वेरी क्लियरली कि प्रोसेस्ड हियर एंड पैकेज्ड हियर, एंड आपके पास कोई गारंटी नहीं है। अब आप कैसे वेरीफाई करेंगे? तो अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो आपने फार्मर को एक छोटा सा ऐप देना है, और बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी, कोई बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने एक सिंपल सा ऐप बनाया और हमने फार्मर को बोला, और फार्मर को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हिंदी के अंदर है, वो उसका यूजर इंटरफेस हिंदी के अंदर है, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस के अंदर है। उसको केवल अपना नाम डालना है, अपना केवाईसी करना है, और बोलना है देखिए यहां से मैं डेटा, यहां से मैंने प्रोड्यूस लिया, इतना प्रोडक्शन किया, इतना मैं आपको बेच रहा हूं, और ये उसकी टेस्ट रिपोर्ट है, उसको देखने की फोटोग्राफ्स है या वीडियो है, जो भी आप चाहें वो आप उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ जैसे ही वो वहां से गया, तो फार्मर से वो प्रोसेसर के पास जाएगा, और 1 2 3 प्रोसेसर, कितने भी प्रोसेसर हो सकते हैं। तो वहां पर हम लोग फिर अगेन वो जो ब्लॉकचेन है, तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे चला गया, तो वन पीस ऑफ पेपर टू अनदर पीस ऑफ पेपर, और वो आपस में कनेक्टेड है। तो दैट इज व्हाट इज द कनेक्शन। दैट्स व्हाई अगर आप देखेंगे कि ब्लू ये मिला हुआ है, तो ये ब्लू की इंफॉर्मेशन के साथ में प्रोसेसर की पिंक इंफॉर्मेशन मिक्स होती है, जिससे कि अब प्रोसेसर एंट्री करेगा, और जब प्रोसेसर एंट्री करेगा तो अगेन वो पुराने वाले डेटा से मैच होएगा कि भाई अगर 100 किलो वीट बेचा गया, तो इधर प्रोसेसर के पास 110 किलो नहीं हो सकता, राइट? या अगर लॉस हुआ है तो उसको एंट्री करनी पड़ेगी, भी 90 केजी से मिला, 10 केजी लॉस हो गया, इस तरह से लॉस हो गया, ये उसकी फोटोग्राफ है, ये उसका टैंपरिंग है, ये उसका प्रॉब्लम है। और वहां पर हम कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं, आईओटी डिवाइसेस इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और ये सब इसके बावजूद भी हो सकता है फार्मर झूठ बोले, हो सकता है प्रोसेसर झूठ बोले। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है, एक थर्ड पार्टी वेरीफायर होता है। सो वो थर्ड पार्टी वेरीफाई करता है कि नहीं, जो फार्मर ने डेटा एंट्री की, जो प्रोसेसर ने डेटा एंट्री की, वो सही थी कि गलत थी, एंड दैट इज अगेन वेरीफाइड। इट्स लाइक एन ऑडिट, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस ऑडिट। तो अब वो कंटिन्यूअसली वेरीफाइड होके आ रहा है कि हाँ भैया फार्मर ने सही बोला, फिर प्रोसेसर ने सही बोला, फिर अभी वेरीफाई हो गया। उसके बाद सील पैक कर दिया गया, उसको पैकेज करके उसके ऊपर सील चिपका दी गई,
एंड फिर वो लॉजिस्टिक्स वाले को दे देगा, ट्रांसपोर्ट वाले को, जिसने कि ट्रांसपोर्ट में जाकर के अगेन इन्फॉर्मेशन दी भाई इस डेट से इस डेट तक यहां से यहां, सो जबलपुर से दिल्ली ये ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रक इस डेट से इस डेट तक ये ट्रांसपोर्ट हुआ, एंड उसके बाद ये कस्टमर के पास पहुंचा। एंड कस्टमर के पास अब जो क्यूआर कोड आएगा, और मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूं, तो अगर आप ये हमारा रियल क्यूआर कोड है और आप इसको चाहें तो स्कैन करके देख सकते हैं। तो दिस इज अ लाइव एग्जांपल, जो भी इस सेशन को देख रहे हैं आप लोग अपने फोन के ऊपर इसको लाइव क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। ये एक बॉटल से लिया हुआ है, जिसके अंदर अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको उस फार्मर की सारी डिटेल्स मिलेंगी कि ये कहां से आया, कौन से दिन पे फार्मर ने हनी एक्सट्रैक्ट किया, कौन से फार्मर की, उसकी फार्मर की फोटोग्राफ्स मिलेंगी आपको। आपको ये पता चलेगा कि कौन से प्रोसेसर ने बनाया, कौन से प्रोसेसिंग प्लांट में बनाया, उस हनी की क्या स्पेशलिटी है, उस ऑयल की क्या स्पेशलिटी है, उस स्पाइसेस की, उन ड्राई फ्रूट्स की क्या स्पेशलिटी है, ये सब कुछ आप इसके अंदर देख सकते हैं। दैट इज व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट गिवन टू अ कस्टमर। सो आप कस्टमर को ये क्यूआर कोड देंगे, और दिस क्यूआर कोड इज नॉट जस्ट डेटा, सो दिस इज बैक्ड बाय द ब्लॉकचेन, जिसको कोई टैंपर नहीं कर सकता। अब अगर आप चाहें भी तो भी इसके इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर्ड है। तो कोई भी टैंपर नहीं कर सकता, कोई नहीं बोल सकता नहीं यार हुआ ही नहीं था, ये तो गलत है, ये तो झूठ है। सो ये जो छुपाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और मुझे लगता है कि देखिए, या तो आप बहुत बड़े ब्रांड हो, और अगर आप बहुत बड़े ब्रांड है तो आप ऊपर लोग विश्वास करते हैं, बट हमारे जैसे छोटे वाले स्टार्टअप्स हैं, हम इतना छोटा सा काम कर रहे हैं, हमारे को अगर हमारे, और हम अच्छा खाना देना चाहते हैं, वी वांट टू सर्व गुड फूड, वी वांट टू सर्व द राइट फूड टू आवर कस्टमर्स, और हमारे पास ये प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। हमारे को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के अलावा कोई और तरीका नहीं जिससे हम अपने कस्टमर्स को बता सकें कि सी देखिए, जो आप बाकी जगह खा रहे हैं वो गलत है, एंड see the product, see the outputs। और आप हैरान होंगे कि हमारे कस्टमर्स के कैटेगोरिकल रिव्यूज हैं, जहां पे उन्होंने बोला कि आपका खाना या आपके फार्म का प्रोड्यूस लेकर के हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, वी कैन सी द डिफरेंस इन द टेस्ट। हमारे को समझ आया कि अरे हनी असली कैसा होता है, तेल कैसा होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, तिल्ली का तेल। और हमने तिल्ली का तेल सप्लाई करना शुरू किया, उसके अंदर हमने ऑथेंटिसिटी इंट्रोड्यूस करी। पहले लोगों ने देखा ये तो अजीब सा है, और उसके बाद उन्होंने जब उसको यूज किया तो बोलते हैं जो रिफाइंड ऑयल है उसमें तो झाग ही नहीं आते, और आपके तेल में झाग आते हैं, और वो एकदम प्योर है। आपके उसमें थिकनेस इतनी ज्यादा है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, उसमें स्मेल है, उसमें फ्लेवर है, अरोमा है, जो कि सुपर रिफाइंड ऑयल में आ ही नहीं सकता। और हम हैरान होते हैं कभी कभी कि जिस प्राइस पॉइंट पे मार्केट में वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, अगर वो उसका प्योर फॉर्म और उसका सही फॉर्म हम एक्चुअली सोर्स भी करने की कोशिश करते हैं तो हम उस रेट पे सोर्स भी नहीं कर पाते। तो हमारी कंट्री में प्राइस की वॉर की वजह से और अडल्ट्रेशन की वजह से इतनी ज्यादा क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो चुका है कि दीज आर द टेक्नोलॉजीज व्हिच हैव टू बी अडॉप्टेड। एंड इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ब्लॉकचेन के। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट ऑथेंटिसिटी है। हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट चेंज हो रही है, बिकॉज अब हमको किसी को भी बताने के हमें हमारी ऑथेंटिसिटी प्रूवन है, हमारे को पता है यहाँ से यहाँ कहीं भी टैंपरिंग नहीं हुई, कहीं अडल्ट्रेशन नहीं हुआ, कहीं भी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। मार्जिन इंप्रूव होते हैं क्योंकि हम प्राइस ज्यादा अच्छी चार्ज कर पा रहे हैं, हम लोग अपने कस्टमर्स को ज्यादा अच्छी रेट पे प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं, प्लस सप्लाई चेन एफिशिएंसी तो डेफिनेटली इंप्रूव हो ही रही है। इफ यू सी द प्रोसेस, ये देखिए, दिस इज अ प्रोसेस, एंड ये हमारे फार्मर है मोनू, जिनके साथ हमने एक काम किया जिसमें वो पहले अपने आप को रजिस्टर करते हैं, वो अपनी केवाईसी डिटेल्स डालते हैं, फिर वो हार्वेस्ट की डिटेल्स डालते हैं, और फिर अप्रूव के लिए भेज देते हैं कि भैया ठीक है, मैंने इतना डाल दिया है, अब आप बताइए क्या हुआ। उसके बाद वो प्रोसेसर का इंफॉर्मेशन आता है, और वो अगेन प्रोसेसर बताता है कि यहाँ से फार्मर का कोड है, तो मोनू फार्मर की तरफ से हमें इतना ये प्रोड्यूस रिसीव हुआ। उसके बाद ये बैच नंबर है, ये डिटेल्स ऑफ पैकिंग है, ये कौन सा हमने टेस्ट कराया, ये लैब टेस्ट के रिपोर्ट्स हैं, और जितने भी बैच रिपोर्ट्स एंड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो अपलोड कर देते हैं। उसके बाद कस्टमर है, तो एंड में कस्टमर आते हैं जो क्यूआर कोड पे स्कैन करते हैं, और उनको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो फार्मर और प्रोसेसर की है। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये जो अभी एंट्रीज हो रही हैं वो आईओटी के ऊपर शिफ्ट करी जाएंगी, जो कि अगेन मैनुअल एंट्री भी खत्म कर दी जाएगी, एंड दैट इज व्हाट इज द फ्यूचर विजन ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर चीजें चेंज हो जाएंगी। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अब आप सोचिए, अब आपकी एक तेल की बॉटल, या आपकी एक हनी की बॉटल, या आपकी एक काजू का पैकेट इज नाउ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, और वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पैकेट है जो बोलता है
जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, जिसको आप स्कैन कर सकते हो, जिसको आप समझ सकते हो कि इसके पीछे क्या हुआ है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हुए हैं, एंड आप ट्रेस कर सकते हो कि वो कहाँ से आया है, एंड वो डेटा इम्यूटेबल है, वो कोई उसको टैम्पर नहीं कर सकता, एंड राइट इन्फॉर्मेशन हम हमारे कस्टमर्स को पहुंचाएं. आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी ट्राई टू डू एट वी ग्रो. तो what I want to say is कि there is a lot of work which has to be done in technology, और हमारे पूरे कंट्री को टेक्नोलॉजी पे और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की जरूरत है. पूरी दुनिया इस तरफ बढ़ चुकी है, और अगर हमें अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाना है, हमें हमारे आने वाली जनरेशन्स को सही रखना है, अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, गिवन द करंट कंडीशंस ऑफ द कंट्री, फार्मर्स की हालत बहुत खराब है. इनफैक्ट उनको सही प्राइस नहीं मिलती, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और अगर हम उनको सही प्राइस पे सही प्रोड्यूस बेच पाए, उनसे ले पाए और कस्टमर्स को बेच पाए, उनको कस्टमर्स, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं. मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ कि हमारे पास लिटरली ऐसी डिमांड आती है क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी है, फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग आती है, एंड देयर आर कस्टमर्स आर विलिंग टू बाय ओरिजिनल, नॉन टैम्पर्ड, unadulterated food. And that is exactly what we are trying to do here. So that's about it from our side. We are happy to take as many questions and have more conversations around business, and we are also happy to talk about our business. किसी को भी कुछ भी पूछना है हमसे तो please feel free to do that. थैंक यू परेश जी. आपने बहुत ही अच्छा एक टॉपिक के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन दिया है. तो सर मैं आगे बढ़ते हुए, नाउ आई वुड लाइक रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट एंड रेज देयर क्वेश्चंस वन बाय वन, और यू कैन आल्सो राइट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. एनी क्वेश्चन? हेलो हेलो, हेलो. आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ, मुझे आ रही है आवाज. आपको आ रही है आवाज? Yes. तो एक बार थोड़ा सा आईओटी पे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे दोबारा से? Sure. So, IoT जो है, IoT is a device. अब समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक इंटीग्रेटेड चिप है, और कैसे IoT फंक्शन करता है. आपकी स्मार्ट वॉच है, अब आपकी जो स्मार्ट वॉच है उसके अंदर एक पीछे एक छोटा सा इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होता है, और उस सर्किट से आपकी पल्स और आपका टेम्परेचर या जो भी आप चीजें मेजर करना चाहें, स्टेप्स का मूवमेंट, वो सब कुछ उसमें कैप्चर हो जाता है. और वो कैप्चर होकर के और फिर आपके फोन में वाईफाई के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू या किसी भी ब्लूटूथ के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाती है. अब ये सेम चीज ट्राई करते हैं कि हम फूड प्रोडक्ट में कैसे डालेंगे. सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक फार्म है, सपोज करें कि गेहूं उग रहा है, और उस गेहूं की फार्म में मैं एक IoT चिप लगा देता हूं, तो वहां पर एक छोटा सा IoT का मैंने डिवाइस लगा दिया, जो मुझे उस पूरे फार्म के सॉइल का मॉइस्चर कंटिन्यूअसली बता रहा है. तो मुझे पता चल रहा है कि वो कंटिन्यूअसली कितना मॉइस्चर में मेंटेन हो रहा है, या मेरे को वहां पे क्या टेम्परेचर्स थे वो मुझे पता चल गया. मुझे हार्वेस्ट डेट्स पता चलने लगी, तो मेरे को पता चल गया कि अच्छा इस डेट पे सोइंग हुई, इस डेट तक आकर के ये क्रॉप का ये करंट सिचुएशन आ रहा है. फोटोग्राफ्स कैप्चर करके वो उसकी प्लांट की मेच्योरिटी चेक कर सकता है. तो वो अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो बहुत सारी चीजें प्लान की जा सकती है. मैं आपको एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूँ. एक फार्मर है, और उनने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया. तो उन्होंने क्या किया, अब आप देखिए कि नॉर्मली फार्मर के साथ क्या होता है कि वो जब प्रोड्यूस लेकर के मार्केट के अंदर जाते हैं, तो क्योंकि वो पूरा प्रोड्यूस एक साथ लेकर जाते हैं तो उनको अच्छी प्राइस नहीं मिलती, और मार्केट के अंदर क्योंकि सारे फार्मर्स उसी टाइम पे वही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. अब अगर आप IoT डिवाइसेस लगा देते हैं, तो एक फार्मर ने क्या किया, IoT डिवाइस लगा करके उन्होंने ड्रिप इरिगेशन लगाया था. तो उन्होंने ड्रिप इरिगेशन के ऊपर एक IoT डिवाइस लगाया, और उससे उन्होंने मेजर किया कि वो प्लांट के ऊपर कितना कितना पानी दें, जिससे प्लांट की ग्रोथ कब कब हो. तो उन्होंने बहुत स्मार्टली क्या किया, हर एक लेन के अंदर अलग अलग सब में IoT डिवाइस लगा करके हर एक लेन का पानी का फ्लो चेक करना शुरू कर दिया. और अब उन्होंने एक बहुत मजेदार बात करी कि एक ग्रो के अंदर ज्यादा पानी छोड़ा, फिर अगले में थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, और वो पानी धीरे 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 चेंज करते गए, पानी का फ्लो. और आप हैरान होंगे कि जो कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग हुई, तो एक दिन में केवल 1 रो के टमाटर निकले, फिर दूसरे रो के अंदर दूसरे दिन के टमाटर निकले, और हर दिन वो कंटिन्यूअसली 20 kgs का प्रोड्यूस या 50 kgs का प्रोड्यूस मॉनिटर करके बना पाए. सो रादर देन कि 500 किलो एक साथ आया, जब मुझे 500 किलो बेचना ही बेचना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, फिर मैं मंडी में करके खराब हाल में बेचूंगा. आप अभी परसों की न्यूज देखिए, बिहार के अंदर एक फार्मर को 1 रुपए किलो गोभी मिली. मतलब वो मंडी में गया, उसको केवल 1 रुपया ऑफर हुआ, बंदे ने पूरी अपनी उसको ऊपर ट्रैक्टर चला दिया और बोला मैं तो बेच नहीं सकता, 1 रुपए कोई रेट ही नहीं होती है.
तो हम IoT को इस तरह से, हनी बॉक्सेस हैं, अब हनी बॉक्सेस के अंदर जैसे वर्ल्ड बीट प्रोजेक्ट ये करता है, उसमें उन्होंने हनी के डब्बों के अंदर IoT डिवाइस लगा दिया। उससे अब आप हनी बीज की जो आवाज है, उनका जो टेम्परेचर है वो मेजर कर सकते हो। और वो मेजर करने से मजेदार बात ये होती है कि अब वो इंफॉर्मेशन आ रही है। तो अब आपको पता है कि क्योंकि ये हनी बी का टेम्परेचर ठीक था, इनकी वॉइस ठीक थी, वॉइस से पता चल रहा है कि मतलब मक्खियां रिप्रोड्यूस कर रही हैं, खूब सारा नंबर बढ़ रहा है, तो वहां पर उससे वो अंदाजा लगा लेते हैं कि इस हनी के डब्बे से 50 किलो हनी निकलेगा कि 25 किलो हनी निकलेगा। तो अगर कोई टैंपर करना भी चाहेगा तो उस पूरे चीज में आपको अंदाजा लग जाएगा। प्लस अगर कुछ गड़बड़ होती है आप इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं। तो दीज आर वेरी गुड implications ऑफ IoT devices which is happening in the agriculture field। आप लोग कुछ ऐड कर सकते हो? एक बात और, थैंक यू सो मच। एक Sure. बात और, लाइक ये IoT जो है ये किसान के लिए ज्यादा है ना, मतलब उसके नहीं मैम, IoT तो अपन सब में यूज कर सकते हैं। आप ये मैंने आपको किसान का एग्जांपल दिया, आप ये समझिए IoT तो आज मैं अपनी रिस्ट वॉच में लगाता हूं, मैं अपने AC में लगाता हूं, मैं अपने फोन, आपको बॉटल का एग्जांपल देता हूं मैं। से फॉर एग्जांपल बॉटल है, आप एक बॉटल में IoT डिवाइस लगा सकते हो। तो जैसे ही वो बॉटल एक्स अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बॉटल के अंदर डाल दिया कि 500 ग्राम की भरनी चाहिए, तो अगर मैंने उसमें छोटा सा IC डाल रखा है, ऑटोमेटिकली वो बॉटल बीप करके बोलेगी 500 ग्राम डन। मेरे को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है मैनुअली कि अच्छा 500 ग्राम था कि नहीं था। तो मेरी बॉटल स्मार्ट हो सकती है, मेरा कैमरा स्मार्ट हो सकता है। तो मेरे जैसे कैमरा है, किसी ने टैंपर किया, जैसी रात को कोई एंट्री किया, अलार्म बज गया, IoT डिवाइस। सो ऑल ऑफ दीज आर IoT डिवाइसेस जहां पर एक IC लगा करके हम इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते हैं। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आप सारे प्रोडक्ट्स में QR कोड के साथ साथ IoT भी मिलेगा। सो अभी तो नहीं है, अभी तो हम लोगों ने पहले ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस किया, तो पहले QR कोड बैक्ड बाय ब्लॉकचेन। और ये मान के चलिए मैम कि अभी उसको इंप्लीमेंट होने में 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि IoT डिवाइस काफी महंगे होते हैं इस समय पे, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो हम लोग धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी तो हम वर्ल्ड बी मिशन के साथ प्रोजेक्ट में काम करके IoT डिवाइस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया के अंदर। अभी तो कहीं भी IoT डिवाइस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो केवल हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डब्बे ही हैं, मतलब 2-4 जगह पे हम लोगों ने ट्राई किया है, बट इट विल टेक सम टाइम फॉर अस टू डू। ओके, थैंक यू सो मच। प्लेजर। सर एक मेरा क्वेश्चन है, बिल्कुल। किसान और कस्टमर में इसमें आपकी ब्लॉकचेन को कैसे मतलब फायदा मिल सकता है? थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, कैसे उसका फायदा मिल सकता है, लाभ ले सकते हैं? सर, किसानों को मेजर प्रॉब्लम होता है कि किसान जो ऑनेस्ट खेती कर रहे हैं उन तक उनको पूरा प्रॉपर फायदा नहीं मिलता। अब अगर हमारे यहाँ पे ब्लॉकचेन से किसान अपनी इंफॉर्मेशन फीड इन कर रहा है, तो डायरेक्ट जो सीधा ट्रांसफर किसान तक हो रहा है, बीच में जो मिडिलमैन है या जहाँ पे अडल्ट्रेशंस के चैनल्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। एंड द मोमेंट दे रिड्यूस, तो उनके पास में ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट गेटिंग बेटर रिजल्ट्स, बेटर रेट्स फॉर देयर प्रोडक्ट। You want to add something? So अभी एंड सर जो कस्टमर होता है, तो कस्टमर का जैसे हमने जैसे जो स्टोरी शुरू किया, जैसे हमने शुरू किया, तो कस्टमर का सबका कंसर्न ये होता है कि यार हमें अच्छा खाना चाहिए, बिकॉज ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ। सबका जो एम है वो ये हो गया कि हमें हेल्दी खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, बिकॉज इम्यूनिटी उससे ही बढ़ती है या फिर हमारी हेल्थ उससे डिटरमाइन होती है। इसलिए जब कस्टमर को पता है कि ये जो फूड है ये ब्लॉकचेन के थ्रू आ रहा है, जब वो देख सकता है कि किस फार्मर से आ रहा है, कहाँ पे प्रोसेस हुआ, किस दिन प्रोसेस हुआ, so there is sense of authenticity कि यार ये उस फार्मर से आ रहा है। even we give the address and the Google Map location of the farmer, so if you want to go and check यार कौन फार्मर है, उस फार्मर से मिलना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो इसलिए कस्टमर के लिए भी यही फायदा होता है कि उनको पता होता है उनका खाना कैसे आ रहा है। अगर कभी भी हम देखते हैं फिर हम पकड़ते हैं कि टैंपरिंग हुई है, तो ब्लॉकचेन का फायदा ये होता है कि हम उस बंदे को जाके पकड़ सकते हैं कि यार इस प्रोसेस पे या फिर इस बंदे में या फिर इस पिन पॉइंट पे टैंपरिंग हुई है। सो वो क्लैरिटी आ जाती है ब्लॉकचेन से। अभी जो होता है, अभी हम किसी को नहीं पकड़ सकते, ना कंपनी को, ना फार्मर को, ना प्रोसेसर को, बिकॉज अभी वो क्लैरिटी नहीं है। बट ब्लॉकचेन की वजह से वो आ जाता है, तो प्रोसेस रिफाइन हो जाती है, कस्टमर्स को फायदा होता है और फार्मर्स को फायदा इसलिए होता है बिकॉज मिडलमैन हटाते हैं तो उनको अच्छा रेट मिलता है, और जब एंड में जो उनका प्रोड्यूस होता है वो अच्छे रेट पे बिकता है बिकॉज ब्लॉकचेन से वो एनेबल्ड है और हमें पता है अच्छा है, हेल्दी है, प्योर है, तो हम उसको महंगे रेट पे बेच सकते हैं और फार्मर्स को भी उसका फायदा होता है बिकॉज हम उससे अच्छे रेट पे खरीदते हैं। सो इसकी वजह से दोनों को फायदा हो रहा है। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ज्यादातर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किसान रहते हैं और वो अपना काम करते हैं, हाँ जी।
तो वहां पे ये सारी टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचती है, कैसे पहुंचाएंगे वहां पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये टेक्नोलॉजी वहां तक नहीं पहुंचेगी, वो उसको कैसे उपयोग में लेंगे, या तो सर उसके हम उनको, हाँ, सॉरी या कोई, सर, हम हाँ, लोग ने अभी तो जो चालू किया है, वी आर मेकिंग इट, मतलब फार्मर को अपने मोबाइल ऐप पे अपनी केवाईसी करनी है। मोबाइल पे उसको एक ऐप बना के दे दिया, उसमें उसे बस अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। टिल द टाइम आईओटी डिवाइस बॉक्स पे सीधे लग जाएगी या वहां पे फार्म पे सीधे लग जाएगी, बट टिल द टाइम दैट आईओटी डिवाइस इज नॉट पुट, सिर्फ अपने मोबाइल फोन को लेकर के फार्मर इंफॉर्मेशन पुट इन कर सकता है। सर बट आई मीन द क्वेश्चन इज, इसीलिए हमें आपकी जरूरत है मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, हम प्रोसेस बना सकते हैं, बट हम सब किसानों पर नहीं पहुंच सकते हैं। एंड इनफैक्ट जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि काफी सारी बड़ी कंपनीज डेफिनेटली आ रही हैं इस सेक्टर के अंदर, बट अभी भी ये इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड ही है। और इनफैक्ट हमें आप लोग की इसीलिए जरूरत है बिकॉज वी वांट गवर्नमेंट सपोर्ट कि ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें हम लोग फार्मर्स तक, एंड हम उनको बता सके कि आप बेटर प्राइस फेच कर सकते हैं। देखिए कस्टमर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और जो अच्छे कस्टमर्स हैं इंडिया का, अगर हम ये मानते भी हैं कि 31 करोड़ जनता में से कम 10% जनता, आप ये मानिए 13 करोड़ लोग, विच इज बिगर देन ऑस्ट्रेलिया, हमारे कंट्री में पैसा अच्छा देकर के अच्छा खाना खाने को रेडी है, केवल मिलता ही नहीं है। तो इनफ फार्मर्स को सपोर्ट किया जा सकता है एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर जहां पे वो अच्छा खाना प्रोड्यूस करें। बट हाँ, हमें भी एक चैनल चाहिए सर जहां पर हम लोग भी अटके थे कि हम लोग जितना कर सकते हैं, बट हमारा पर्व बहुत छोटा है इस समय पे। हम 100 किसान, 200 किसान, 500 किसान के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। सो आई थिंक यस, वी नीड सपोर्ट इज व्हाट आई कैन से वेरी ऑनेस्टली। नहीं, बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाह रहा, अधिक से अधिक किसानों के साथ जुड़ेंगे तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे काम करेगी सर। Once again, I would like to thank you, We Grow team, Richa ma'am, Paresh ji, and Tushar ji. Your presentation provided us with deep insight. Many thanks for sharing your invaluable experience in agriculture technology. Participant got benefited from your talk. At last, I would like to thank you everyone for sparing their valuable time with us. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks for inviting us and listening to us. Thank you. Okay, thank you. Thank you.